The bill further to amend the Banking Regulation Act 1949 be taken into consideration. कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर। सर, इस बिल को हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि पिछले 2 साल से हम लगातार कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल बैंक्स जिनके डिपॉजिटर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, उन डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए और उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंक के नाते काम करते हैं, उनमें जो बैंक के नाम उपयोग करते हैं या बैंकर या बैंकिंग के काम करते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इस बैंकिंग एक्ट के द्वारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट के द्वारा उनका डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए ये अमेंडमेंट लिया जा रहा है। We are trying to bring this amendment in order to protect the depositors who in the last 2 years, honorable members, sir, through you I wish to say, would know that depositors in some unfortunate situations in banks or cooperative societies which are operating as banks are put to hardship, either because these banks have fallen into bad days, requiring therefore the regulator to bring a moratorium and to solve the problem seems to consume all the time. इस रेगुलेशन इसीलिए एक एक्ट के द्वारा, बिल अमेंडमेंट के द्वारा हमने मार्च बैंक बजट सेशन के समय उसको पेश किया था. We had introduced this bill in order to have the amendments brought in so that depositors' interest will be taken care of. But unfortunately, because during the budget session we couldn't have this bill passed, we had to bring an ordinance. And that ordinance was brought in only because the financial health of many of these cooperative societies which were also performing as banks was becoming very delicate. मैं सदस्यगण सबको आपके द्वारा ये जानकारी देना चाह रही हूं कि कोऑपरेटिव बैंक्स का हालात थोड़ा गंभीर होने के कारण लॉकडाउन के पीरियड होते हुए भी हमने एक ऑर्डिनेंस ले आने का मजबूर हुआ. कोऑपरेटिव बैंक्स का हालात बोलने के समय में ये ध्यान दिलाना चाह रही हूं कि 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स बहुत ही वीक है. 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं. 105 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स उनका अपना मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं. Meaning 105 urban cooperative banks are unable to meet even the minimum regulatory capital requirement. So, 47 having negative net worth, 47 का net worth negative है. फिर 328 urban cooperative banks are having more than 15% gross NPA. ग्रॉस एनपीए रेशियो 15% का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में एनपीए होने के कारण, मैं मार्च 2019 का डेटा बोल रही हूं, ये सब ऐसे रहते हुए मार्च 2020 तक डेटा देखिए सर, पैंडेमिक के द्वारा स्ट्रेस कोऑपरेटिव बैंक में इंक्रीज हुआ विद ग्रॉस एनपीए रेशियोज ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स increased from 7.27% in March 2019 to over 10% in March 2020. Therefore, it was felt
that in the interest of the depositors, we should have this ordinance brought in. Now, that ordinance will have to be replaced so that we are able to have three different things brought in, sir. Section 3 का amendment हो रही है, Section 45 का amendment हो रही है, Section 56 का भी amendment हो रही है. Now, amendments to 3 and 56 are clearly because बैंक के नाम रखते हुए जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन करते हैं, उनको कमर्शियल बैंक्स को जो रूल्स लगता है वही रूल उनको भी लगना चाहिए. By amending Section 3 and Section 56, we are making provisions applicable, that which is applicable for banking companies, that is commercial banks, to cooperative banks also, so that cooperative banks are equally subjected to better governance and sound banking regulations through the RBI. ये Section 3 का amendment और Section 56 का amendment का motive यही है, objective यही है. Section 45 का भी amendment हो रही है. ये क्यों हो रही है? That will enable the RBI to make a scheme of reconstruction or amalgamation. For example, the way in which the recent Yes Bank reconstruction scheme happened, to protect the interests of the public depositors. Depositors के हित में अगर reconstruction हो सकता है बिना moratorium period, without making the bank undergo a moratorium period, if you are able to reconstruct the bank, if you are able to professionalize their management, and if that power can be given to the RBI, it might help the depositors so that आज भी मैं दोबारा वो उदाहरण ले रही हूँ, पीएमसी बैंक का डेपोसिटर्स का सॉल्यूशन आज तक हो नहीं पा रही. अगर आरबीआई के पास सेक्शन 56 के द्वारा इस अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 45 इस अमेंडमेंट के द्वारा आरबीआई को हम वो पावर सौंपा देंगे, जैसे यस बैंक को हुआ, उधर भी मॉरेटोरियम के साथ हुआ, मगर बिना मॉरेटोरियम और तकलीफ कस्टमर को, डेपोसिटर्स को ना करते हुए अगर रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और जल्द से जल्द डेपोसिटर्स के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनका सर्विस लगातार कंटिन्यू हो सकता है, ये 45 सेक्शन का अमेंडमेंट के द्वारा वो होगा. That is why we want to have Section 3, Section 45 and Section 56 amended. बिल्कुल डेपोसिटर्स के इंटरेस्ट को मन में रखते हुए ये सब हो रही है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिन जिन को बैंक का नाम है सिर्फ उनको वर्तित है ये अमेंडमेंट्स. प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को ये लागू नहीं है. दिस डज नॉट अप्लाई. This shall not apply to the primary agricultural credit societies. This shall also not be applicable to cooperative society whose primary object and primary business is providing long-term finance for agricultural development. इनको भी ये लागू नहीं है. So let us be clear that we are not doing anything to touch state cooperatives. We are not doing anything to touch primary agricultural credit societies. We are not doing anything to touch cooperative societies whose primary object and primary business is providing of long-term finance for agricultural development. So, अगर कोई मेंबर के मन में ये शक है कि क्या ये पीएसी को वर्तित है, क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में काम करती हैं उनको भी टच करेगा, मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूं माननीय स्पीकर महोदय आपके द्वारा कि ये बिल्कुल इनको वर्तित नहीं होगा. सिर्फ इनको वर्तित होगा जो बैंक या बैंकर या बैंकिंग का काम करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, सिर्फ उनको ही लागू होगा. एंड ये पहले बार नहीं है इस सेक्शन को अमेंडमेंट करने का सरकार के द्वारा प्रयत्न हुआ है. सेक्शन 3 का 56 का अमेंडमेंट इससे पहले भी हुआ है, इसीलिए कोई ये ना गलतफहमी में
रहे कि ये क्या हो रही है, इस बार क्यों ऐसे कर रहे हैं। इससे पहले भी सेक्शन 3 और सेक्शन 56 का अमेंडमेंट भी हुआ है, एक बार 68 में, 65 में, 1965 में, 1984 में, 1987 में, 1989 में और 2012 में भी इन सेक्शन का अमेंडमेंट हुआ है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का कंसिडरेशन लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूं।